ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା କ୍ଷଣି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 34 ପଦରେ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଥିଲା, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏତେ ଅପମାନ କଲା ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲା ପରେ, ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରୁ ଏହି ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତା ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ଷମାର ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାହାନା ଦେଖାଇଥାଉ, କହିଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ଜମା କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଯାହା ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ କାହାରିକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି କ୍ଷମାର ଦିନ। ଆପଣ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ପୁନର୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦୟା କରେ ନାହିଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରୂପେ ବିଚାରିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି କ୍ଷମା କରିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଜଗତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଫେସୀୟ 4:26 ପଦରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସକାଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ। ବାପା ମାନେ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରିନାହୁଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏ ଶୁକ୍ରବାରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ସାହସ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଦିନ ସ୍ତିଫାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଶିଖିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ତାର 7 ପର୍ବ 60 ପଦ ଦେଖିବେ, ସ୍ତିଫାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ମନୋଭାବ ଅଛି ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ଭର୍ସନାକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। କାରଣ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ଷମା ଦେବାର ପର୍ବ ଅଟେ, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଦିନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଏହି କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସପ୍ତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ମୋର ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କର। ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ, ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ।
प्रिय बंधु प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु आज क्षमार पर्व अटे फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस अटे क्रूसरु ए प्रथम सुसमाचार आम पाउछु प्रभु जीशु आम कही बाणी देवा चाहती आम चतुर्पार्श्वर अनेक को देखुछु से क्षमा दे पारु नाहंती मृत्यु पर्यंत क्षमा न देवा जिदखर भाव अच्छी आने क्षमा न देवा अनेक बाहाना करती अनेक रिजन बताती आपण पाखे हुए तो 100टा रिजन थी पारे किंतु प्रभु को दास भाव में आपको कहवाई चाहे आज क्षमा दिंतु ताहले वास्तव में आपण गोटे शुभ शुक्रवार हो पारे प्रिय बंधु आपण जदि अन्य को क्षमा करेंगे ईश्वर मध्य आपण को क्षमा करेंगे आपण जदि क्षमा पाइबा चाहती आपण को मध्य क्षमा करने को पड़ो अक्रूसरु जीशुंकर द्वितीय बाणी थिला जहाँ आप देखिए लुक तार 23 पर्व 43 पदरे देखा जाए से कहले मु तुमको सत्य कहूँ आज तुम्हे मो सहित पारदीश उपस्थित हब यह जीशुंकर द्वितीय बाणी थिला और प्रभु जीशु ख्रीस्ट ए स्थान रे से चोरटी को एक्सपीरियंस दौरान सुनिश्चितता दौरान तुम्हे आज मो सहित पारदेश उपस्थित हब प्रिय बंधु ये चोर निकट में प्रभु जीशु ख्रीस्ट कौन सुसमाचार कहना कौन अलौकिक कार्य करना जीवन कौन आशीर्वाद कारण करना कि जीशु को से क्रूसरे देखी जापर जे ए भिन्न व्यक्ति अटंती से तार बंधु को कहते आमे सीना भूल कार्य करी आमे दोष पाउछु दंड पाउछु किंतु एही व्यक्ति जनक से किछि करि नाहंती से अनुतप्त होउछंती से खेदित होउछि से आ से जीशु को कहूछि आपण जेबे आपण को राज्य रे प्रवेश करिवे दया करी मते स्मरण करिवे प्रिय बंधु प्रभु जीशु मध्य ताकू सुनिश्चितता दउछंती आ कहउछंती जे तुमे आज मो सहित पारदेश रे उपस्थित हबो मोर प्रिय माने आज आपण को पाई मध्य परित्राण रो सुनिश्चितता पाई परिबे जदि से क्रूसर हत जीशु को आपण ग्रहण करिवे आपण मध्य से सुनिश्चितता पाई परिबे आज आपण को पाई परित्राण दिन होई परिबो आपण जे कोनोसी पाप करिथांतु ना काहेकि से क्रूसर चोर तुल्य आपण को लाइफ रे मध्य आज गोटे टर्निंग पॉइंट आसी परिबो प्रभु आपण को मते सहायता करंतु कारण विनाश प्राय लोकमान को निमंते प्रभु जीशु ख्रीस्ट मनोयोगी अटंती क्रूसीय जंत्रणा निर्यातना अपमान घृणा मध्य प्रभु जीशु ख्रीस्ट गोटे आत्मा को रक्षा करने को पछौ नाहंती मोर प्राणर प्रिय प्रभु से हजार हजार लोक निकट सुसमाचार कहिसंती आश्चर्य कर्म करिसंती तार अनुकारी अनेक थिले किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेतेबेले मध्ये सुयोग पाउथिले से पर्सनल इवांजेलिज्म करबा पे मध्ये के पछौ नथिले आज प्रभु जीशु हमको सिखांती हम चतुर्पार्श्व रे अनेक लोक विनाश प्राय अवस्था अछंती अनेक लोक पाप रे अछंती विनाश आड़ को जाउछंती के सुइसाइड करूछि के निशासक्त होउछि के बा अनेक पाप रे लिप्त होई जीवन हराइबा पई सिद्धांत नउछि सेही समय रे आपण ता कहि परिबे कि ए सुनिश्चित तार कथा जे आपण को पई पारदीश अछि बोली मोर प्रिय बंधु म आपण कहिबा पई चाहे प्रभु जीशु ख्रीस्ट आज आपण को मध्य सुनिश्चितता देबा पई चाहंती से कहिबा पई चाहंती आज तुम पई पारदीश अछि प्रभु से व्यक्ति जन को कहले तुम्हे आज मो सहित पारदेश उपस्थित हब प्रिय बंधु प्रभु आपण को अनुग्रह करंतु आपण मध्य परिणति बयस पर्यंत अपेक्षा करंतु नहीं अनेक कहती अभी समय अच्छी उपभोग करबा पई जगत को उपभोग करबा पई आराम करबा पई जगत रे आनंद मजा मजलिस करबा पई किंतु प्रिय बंधु आपण जानंती नहीं मृत्यु केउ दिन आपण को द्वार रे ठिया हबो मृत्यु केबे आसीबा आपण जानंती नहीं से दिन पर्यंत अपेक्षा करंतु नहीं आज सुजोग अच्छी आज शुभ शुक्रवार आम गोटे सुनिश्चित तार वार्ता देवाई चाहे गोटे अनिश्चित जगत में बास करुछु किंतु ए जगत में बास करने समय आपण गोटे सुनिश्चित संवाद पाइपर आज आपण पारदीश अच्छी ए जगत में शांति नहीं जगत में समस्या अच्छी जगत विनाश आड़ को जाऊँगी प्रिय माने किंतु जगत विनाश है आरामदायक स्थान अच्छी तार प्रारंभ तार शुभारंभ पारदीश रही थाए प्रभु जीशु ख्रीस्ट से अनुतप्त चोरटी को कथा कहते मोर प्राणर प्रिय प्रभु जीशु ख्रीस्ट जे जगत उद्धार करने आसते से पापी मान को खोजी उद्धार करने आसते पापी मानकर त्राणकर्ता जे पापी मानकर बंधु अटंती से क्रूसरे मध्य गोटे बंधु को लाभ करुछंती से स्वर्ग को जीवा पूर्व से पारदेश को जीवा पूर्व जड़े लोक को सांगरे नेबा पई चाहंती प्रिय बंधु आपण आ मु आमे स्वर्ग जीवा पई चाहू
आम उद्धार प्राप्त होई आमे स्वर्ग जीवा पई चाहू किंतु आम सहित जड़े दुष्कर्मकारी जड़े चोर जड़े डकायत जड़े बदमाश जे पापर लिप्त से उद्धार पाओ एक कथा आम केबे भी चाहि न थाओ। आज प्रभु आम कहबा पई चाहंती से क्रूसर सुसमाचार आमको देबा पई चाहंती जे आपण एवं मु मध्य अन्य पाई गोटे आशीर्वाद कारण हो पारिबा अन्य पाई उद्धार कारण हो पारिबा। आम ऑफिस रे आम चतुर्पार्श्व रे आम कलिग मान अछंती आम कॉलेज रे अछंती आम सहकर्मी मान अछंती अनेक सहित आम बंधुता अच्छी किंतु केबे मध्य आम सेमानकु यीशुंकर कथा कहिना। प्रिय बंधु प्रभु आमानकु सहाय्य करंतु। ए द्वितीय बाणी आमानकु आज परामर्श दिए जे विनाश प्राय जगत रे आम अन्य मानकु ख्रीष्टଙ୍କ निमंते लाभ करि पारिबा। प्रभु आपण मानकु सहाय्य करंतु आज संवाद को विशेष भाव में बुझिबा निमंते। यीशु ख्रीष्टଙ୍କର क्रूसर तृतीय बाणी थिला जा आपण मान देखिबे जोहन तार 19 पर्व तार 26 पद एवं 27 पद मु आपण मान निमंते पढ़िबा पई चाहे। यीशु आपण माता और जो शिष्यों को प्रेम करुथिले तांको पाखरे ठिया होइतबा देखि माता को कहिले गो नारी देखो तुमर पुत्र। तत्परे से शिष्यों को कहिले देखो तुमर माता। आउ से दंडरू से शिष्य तांको अपना गृह को घेनी गले। एहा थिला यीशु ख्रीष्टଙ୍କର क्रूसर तृतीय बाणी। एठा हम देखुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताको मातांको संपर्क चिंता करूछंती। क्रूसर गोटे सुंदर संवाद प्रभु देबा पई चाहंती कारण मरियम जने विधवा स्त्री लोकटी आम अनेक थर देखु यीशु जो स्थान रे थांती से स्थान रे पहुंची जाती अनेक थर आम देखीछु कारण से यीशु पछरे सबले जानती यीशु ही तांकर सब जत्न नउथिले। वर्तमान यीशु क्रूसरे मृत्यु भोग करिवा पई जाउछंती आ से समय मां तांको नै छंती हुए तो से एहा कहिबा पई चाहंती पुओरे तू कहा भरोसा रे मते छाड़ी के जाउछ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरु गोटे जत्न नेवा विषय कहती निजर वृद्ध पितामाता मानकु। आज परिवार गुड़े अनेक वृद्ध पितामातांकर जत्न निया जाऊ नाही। मोर प्रिय बंधु मु आपनको कहिबा पई चाहे बाइबल रो परमेश्वर विधवार परमेश्वर अटंती। आज परिवार गुड़ी अनेक वृद्ध पितामाता मानकु उपेक्षा करा जाए जत्न निया जाए नाही। आज शुभ शुक्रवार आमान के संवाद दिए जामान को घरे रही थिबा अपना अपना पितामाता को जत्न नेबा पाए सन वार्धक्य समय सन जत्न नेबा पाए उपेक्षा करंतु नाही तिरस्कार करंतु नाही अपमान करंतु नाही कारण क्रूसर हत यीशु आम कथा सिखांती कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसर रही मध्य तांको मां पई चिंता करूछंती। से कहउछंती तो पई गोटे पुअर व्यवस्था करिछि एवं जहन को कहउछंती देखो तुम पई गोटे मां कर व्यवस्था करिछि। प्रिय बंधु मु आपन कहिबा पई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु भोग करिबा पूर्वरु जगत को परित्याग करिबा पूर्वरु सेई कथा चिंता करूछंती तांको मातांको विषय। आज अनेके अपना माता पितांकर जत्न नियंती नहीं पितामाता उपेक्षा करती सेमानक पई यथेष्ट समय दियंती नहीं। आज प्रभु आमानको सुजोग देइछंती सेमानको क्षमा मागिबा पई सेमानको पुनर्मिलित होबा पई आज गोटे सिद्धांत नेबा पई जाजी ठारू आमे अपना अपना वृद्ध पितामातांकर जत्न नेबी। प्रिय बंधु आज देशर सब स्थान देखिबे सब धर्म सब गोष्ठी सब जातिर लोक माने से निजे आराम रहिबा पई चाहंती सुरक्षा रहिबा पई चाहंती आनंददायक स्थान रहिबा पई चाहंती जगत उपभोग करिबा पई चाहंती किंतु जो पितामाता माने समान जत्न नैछंती सेमानकु समाने मने पकांती नाही। अनेक पुओ माने बहु माने तिरस्कार करंती। आज मु आपनको कहिबा पई चाहे क्रूसरे हत यीशु क्रूसर तृतीय बाणी रे आमान के कथा सिखांती ए कथा कहंती जे तुम्हे अपना पितामातार जत्न नियो। प्रिय बंधु संवादटी शुणा समय जदि आप केबे मध्य अपना पितामाता को तिरस्कार करिसंती दुख देला भलिया कथा करिसंती सन उपेक्षा करिसंती सन तिरस्कार करिसंती ताहले म आपन कहिबा पई चाहे दया करे आपन सन को जत्न नियंतु प्रभु आपन को आशीर्वाद करिवे। कारण बाइबल लिखा जाउछि पितामाता को समादर करो तहिरे तुमरो मंगल हबो। अनेकक जीवन में मंगल आम देखि पारु ना सन चाकरी करूछंती व्यवसाय करूछंती तथापि आशीर्वाद देखि पारु नांती गृह निर्माण करूछंती शांति रे रही पारु नांती कारण कोन पितामाता समान जत्न नि नांती जीवन उन्नति करिवा पई चाहंती मंगल देखिवा पई चाहंती दीर्घायु देखिवा पई चाहंती
अपना पितामाता जत्न नियंतु। बाइबल परमेश्वर आमानकु एक कथा सिखांती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसर रहिबा समय सुद्धा ए विषय आमानकु जनांती जे आमे माने अपना अपना पितामाता जत्न नेबु। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। ए विषय गुलिक स्पष्ट भाव बुझिया पय सहायता करंतु। ए क्रूसर सप्तवाणी कहिबा समय आपण मान सम्मुखरे गोटे व्यवहारिक भाव में आज शुभ शुक्रवार कि प्रकार आपण निमंत आशीर्वाद जनक हो पार ताहा मु आपन कहबा चाहूँगी। वर्तमान आम ध्यान करने जा क्रूसरे जीशुंकर चतुर्थ वाणी जहाँ आपण मान पाइबे माथ्यू तार 27 अध्याय तार 46 पद। एटा लिखा जाए आ प्राय 3 घंटा समय जीशु उच्च स्वर डाकी कहले एली एली लामा सबक्तानी अर्थात हे मोहर ईश्वर तुम्हें मते कहीं परित्याग कल। यह जीशुंकर चतुर्थ वाणी थिला। पिता पुत्र केबे परस्पर ठार विच्छिन्न होई नांती। बाइबल कहे जीशु ख्रीष्ट को पितांकर कलस्थित अद्वितीय पुत्र आरंभरू आद्यरू से एकाठी अछंती। किंतु आज आपणकर मोर पाप सकाशे पिता अपना मुख लुचाई दौरान गोटे विच्छेद आसी जाऊँगी। कारण से समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण मोर पापर बोझ बहिबा जाउछंती। से आपण ऊपर को अपना पाप आमानकर पाप सबू से नहीं जाइछंती। आ से समय पिता तांको परित्याग करूछंती। आ जीशु विलाप सहित क्रंदन सहित उच्च स्वर कहउछंती हे मोर ईश्वर तुम्हें मते कहीं परित्याग कल। प्रिय बंधु आपणको पितांको सहित पुनर्मिलित करबा पाए अल्प समय पाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितांको ठारू विच्छिन्न होउछंती। किंतु एही समय मध्य जीशुंको पाए अति दुखदायक थिला। कारण से केबे मध्य अपना स्वर्गस्थ पितांको ठारू अलगा रही नांती। आपण चिंता कर देखंतु आपण स्वर्गस्थ पितांको ठारू केते दिन अलगा अछंती। तांको सानिध्य को जीवा पाए तार उपस्थिति जीवा पाए आपण केते कष्ट आपण को मने मध्य पड़ुने तांको सानिध्य को जीवा पाए। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट मन रखंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से अल्प समय मध्य पितांको ठारू विच्छिन्न होई पारु नांती। आपण को मते पितांको सहित पुनर्मिलित कराइबा पाए हमर पापरु हमन को उद्धार करबा पाए हमन को पापर बोझ प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण ऊपर नेले। और से पाप बहिबा समय लिखा जाउची से पाप स्वरूप हेले आमान को पाप प्रभु आपण ऊपर को नेले और से समय पिता ताको परित्याग करूछंती। प्रिय बंधु आपण को मते पितांको सहित मिसेइबा पाए सदा काल तांको सहित एकीभूत करिबा पाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे आमान को पाप बहुछंती। प्रिय बंधु आज मु आपण कहिबा पाए चाहे से पितांको सहित आपण को संपर्क केमिति अछि। से स्वर्गस्थ पितांको सहित आपणकर सहभागिता केमती अछि। से दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट घोड़िए मध्य संभाली पारु नांती। आज आपन को पचारिबा पाई चाहे आपन जो क्रिश्चियन बोली कहंती ईश्वर को संतान बोली कहंती कि ईश्वर को ठारू आपन केते दूर को जाइछंती केते विमुख होई जाइछंती। आज पुनी थरे पितांकर सहित पुनर्मिलित हेबा समय अटे पितांकर सानिध्य को आसीबा समय अटे। पितांकर सहित आपन संपर्क को मजबूत करंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पितांक सहित संपर्क केते मजबूत थिला जे से क्षणिक मध्य पितांक ठारू विच्छिन्नता से सह्य करि पारु नांती। प्रभु आपन को सहायता करंतु। आज ए वाक्य सुनिबा समय विवेचना करिबा पाए जे पितांक सहित आपन को संपर्क केमती अछि। प्रिय बंधु प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु विवेचना करिबा पाए पण पितांकर सहभागिता मध्य को बाहुडी जिबा पाए। जीशु ख्रीष्टंकर एही बाणीटी हमकु सुचाए जे पितांक सहित तांकर किभली अंतरंग संपर्क थिला। आज से स्वर्गस्थ पितांक सहित आपणकर संपर्क कि प्रकार अछि। आपण कहंती ईश्वर संतान बोली किंतु आपण पाप रे रही ईश्वर दूर को जाउछंती। कारण पाप जत आपण जीवन रे आसी जाए ईश्वर आपना को दूरेई नि जानती ता प्राचीर स्वरूप आसी जाए। यदि पितांक सहित सम्मिलित होबा पाए आपण जीवन रे कोनोसी पाप अछि ता परित्याग करंतु आ पितांक निकट को बाहुरी जानतु। ए संवाद आपण को मते सचेतन कराए। जीशु ख्रीष्टंको क्रूसरु पंचम बाणीटी थिला जहाँ आपण माने पाइबे जोहन लिखित सुसमाचार तार 19 अध्याय तार 28 पद। एटा लिखा जाए
यापर यीशु धर्मशास्त्र वाक्य जेपरी सफल हुए एथि निमंते समस्त विषय एबे समाप्त हो जानी कहले मते तृषा लगुची यीशुंकर पंचम बाणी थिला मते तृषा लगुअछि राति सारा जंत्रणा निर्यातना गेसिमनी रे तांकर झाल घन रक्त टपा पड़ी पड़ुछि से प्रहारित होइछंती ए प्रकार क्रूसरे झुलिबा समय दीर्घ समय क्रूसरे झुलिछंती वर्तमान तांकु तृषा लागुअछि से तांकर इच्छा प्रकाश करुछंती जे प्रांतर रे शैल होई तृषा मेंटाई थिले जे सम्मिलन स्त्री को कहिथिले मु जो जल देबी ताहा जदि तुमे पान करिवो तुमे केबे तृषित हबो नाही से कहिथिले जे तृषित से मो निकटक आसु धर्मशास्त्र उक्ति प्रमाणे तार अंतररु जीवंत जलस्रोत प्रवाहित होउथिबो आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज से तृषित अटंती जे अन्यर तृषा निवारण करुथिले से आज तृषित अटंती प्रिय बंधु मैं आपन कहिबा पई चाहे बाइबल लिखा जाए जिखरियो तार 13 पर्व एक पदरे परमेश्वर एक निर्झर बुहाइबे जे अन्य मान तृषा सबु निवारण करिवो प्रभु आमान साहाय्य करंतु आज समय लोक मानकर अनेक तृषा रही धन कमाइबार तृषा यौन तृषा पदवीर तृषा नाम कमाइबार तृषा ख्रिस्टियान तृषा कोठी अछि तार तृषा आत्मिक तृषा अटे ना मानसिक तृषा अटे प्रभु आमान साहाय्य करंतु या बुझिबा पई प्रभु यीशु कहउछंती मते तृषा लागुअछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट संपूर्ण मनुष्य थिले आ मनुष्य भावरे से तांकर इच्छा को प्रकाश करुछंती किंतु लोक माने तांको जल देबा परिवर्ते तांको अमल रस दउछंती प्रिय बंधु म आपन कहिबा पई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपनक पई तृषित हेले जेपरि आपनकर समस्त तृषा निवारण करि पारंती जदि आपण यीशु को निकट आसीबे आपनकर समस्त तृषा से मेंटी देबे कारण से समस्त आवश्यकता पूर्ण करिबा पई आपनकर समस्त अभाव पूर्ण करिबा पई आपनको तृषा रक्षा करिबा पई से तृषार्त हेले प्रभु आज आपनको साहाय्य करंतु ए कथाटी बुझिबा पई कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपनको निमंते तृषित हेले से क्रूसरे क्रूसान्वित हेबार नथिला से जंत्रणा भोग करिबार नथिला किंतु आपनको मते रक्षा करिबा पई कारण समुदाय मानव जाति मध्यरे एकमात्र त्राणकर्ता से ही अटंती अनेक आसीतिले जगत आसीले आराम रे जीवन काटिले सुख रे जीवन काटिले अब चली गले किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीतिले केवल आपनक पई मो पई क्रूसार्पित हेबे दुख सहय करिवे निर्यातित हेबे जेपरि तांको प्रहार रे आपण सुस्थ हेबे तांको मृत्यु रे आपण हम जीवन पाइबु कारण समुदाय मानव जाति निमंते यीशु ख्रीष्ट ही एकमात्र उद्धारकर्ता अटंती आउ तांकर पंचम बाणी थिला मते तृषा लागुअछि प्रिय बंधु प्रभु आपनको साहाय्य करंतु जदि आपण यीशु निकटक आसीबे आ से कहउछंती जे तृषित से मो निकटक आसु आपनको तृषा कोन मु जाने ना आपण यीशु को निकटक आसंतु आपनको आत्मिक तृषा सत्य जानिबार तृषा ईश्वर को निकटवर्ती हेबार तृषा समस्त तृषा को से मेंटेइबे से तृषित हेले जेपरि आपण केबे तृषित हेबे नाही प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु प्रिय बंधु आज एही शुभ शुक्रवार संवाद केवल आपनको पाए केवल सुनुछंती समान को पाए प्रभु आपनको स्पष्ट भाव कहिबा पई चाहंती आपनको तृषा मेंटेइबा पई आपण चतुर्पार्श्व धाई बुलुछंती किंतु आपनको तृषा अन्य कोन स्थान रे मेंटी पारिबो नाही अन्य कोन विषय आपनको तृषा को निवारण करि पारिबो नाही किंतु जे प्रांतर लोक मान को तृषा निवारण करिथिले से आज क्रूस तृषित होउछंती जेपर आपनकर समस्त तृषा को से निवारण करिवे प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु या बुझिबा पई प्रभु सहाय्य करंतु आसंतु प्रिय बंधु यीशु को निकट बाहुडी आसंतु आउ यीशु ख्रीष्टकर क्रूसर षष्ठ बाणी थिला जे आपण मान पाइबे जौन तार 19 अध्याय तार 30 पद लिखा जाए से यीशु से अमृतरस पान करी कहिले समाप्त हेला आ से मस्तक अवनत करी प्राण त्याग कले एठा लिखा जाए प्रिय बंधु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंती समाप्त हेला स्वर्गर परमेश्वर अद्वितीय परमेश्वर अमर परमेश्वर
से जगत को गोटे कार्य नहीं आसी आउ से ताहा जे समाप्त करिसंती क्रूसरे से समस्त कार्य समाप्त करिसंती मनुष्य उद्धार निमंते मनुष्य को स्वर्ग नेबा निमंते मनुष्य पाप क्षमा निमंते मनुष्य को अनंत जीवन देवा निमंते जो कार्य आवश्यक थिला जो अनंत काल पूर्वे परमेश्वर योजना करथिले ए पतित मानव को उद्धार करिबा पाई ए विनाश प्राय जगतर लोक मान को उद्धार करिबा पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो कार्य नहीं आसीथिले ताहा से समाप्त करिसंती आउ कहउछंती समाप्त हेला से कहु नांती समाप्त हेली से कहउछंती इट इज फिनिश्ड से कहु नांती आई एम फिनिश्ड इट इज फिनिश्ड साधारणतः यह गोटे दास मानकर वाक्य थिला प्रभु यीशु ख्रीष्ट ईश्वर को प्रेरित जड़े दास अटंती से मानव जाति उद्धार करने निमंते दास रूप में आसी से आपनर कार्य समाप्त करिसंती प्रिय बंधु आज मनुष्य उद्धार पाइबा निमंते ताकू आउ कौन स्थान को जीवाक पड़िबो नाही कारण यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे तार परित्राण कार्य समाप्त करिसंती अनेक धाई बुलुछंती विभिन्न स्थान को विश्वर विभिन्न स्थान को परिभ्रमण करुछंती विभिन्न लोकमान पाखक जाउछंती विभिन्न उपाय अवलंबन करुछंती किंतु उद्धार मिले नाही मोर प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे से उद्धार कार्य को समाप्त करिसंती केवल यीशु ख्रीष्टंकर क्रूसरे समाप्त करा जेथिबा कार्य ताहा ही मनुष्य को उद्धार करि पारे आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताहा समाप्त करिसंती आ से कहउछंती समाप्त हेला प्रभु को नाम स्तुति हो मो प्रिय माने आज आपनकु एवं मोर एवं आगामी जते पीढ़ी आसीबे समुदाय पृथ्वीर समस्त जातिर समस्त धर्मर जेकोसी गोष्ठी वर्णर लोक हूँ ना कहीं भाषार लोक हूँ ना कहीं समस्त निमंते ख्रीष्ट ही एकमात्र उद्धार मार्ग अटंती आउ से ताहा समाप्त करिसंती आ अन्य केही ए कार्य करि नाहंती अन्य केही कार्य करि नाहंती क्रूसरु ए प्रकार कोनसी व्यक्ति एते सुंदर वाणी उच्चारण करि न पारे आमे जानिछु अनेक महान व्यक्ति माने पृथ्वी मृत्यु वर्ण करिसंती किंतु ख्रीष्टंक परि ए प्रकार उक्ति गुलिक से माने उच्चारण करि नाहंती मृत्यु समय अनेकंकर उक्ति गुलिक दुखदायक थिला किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर ए सत्य वाणी जा समुदाय विश्ववासी को चकित करे एहा थिला तांकर षष्ठ वाणी से कहउछंती समाप्त हेला मोर प्रिय भाई भनी माने म आपन कहिबा पई चाहे जदि एबे पर्यंत आपन कोनसी द्वंद्व रे अछंती परित्राण पाइछंती कि नै बोली भाबुछंती आपनकर पाप रो क्षमा हिछि कि नै बोली भाबुछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे ता समाप्त करिछंती समस्त कार्य समस्त धर्म कर्म जहाँ हेबार थिला ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट समाप्त करिसंती केवल आपन को यीशु दरकार यीशु को जदि आपन ग्रहण करिवे आपन को किछि करिबा में पड़िबो नाही कारण आपन को प्रति बदल रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त कार्य समाप्त करिसंती केवल आपन को यीशु को निकट आसीबा में पड़िबो यीशु को प्रभु भाव ग्रहण करिबा में पड़िबो कारण से परित्राण निमंते समस्त कार्य को समाप्त करिसंती जने व्यक्ति उद्धार प्राप्त होई अनंत जीवन प्राप्त होबा निमंते स्वर्गर अधिकारी होबा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त कार्य क्रूसरे संपन्न करिसंती आ से कहउचंती समाप्त हेला प्रिय बंधु आपन को आ चिंता करिवार आवश्यक नाही आपन को व्यक्तिगत होबार आवश्यक नाही मोर पाप कोन हबो मोर परिवार कोन हबो मोर पिलामानकर कोन हबो मु करिथा भूल कोन हबो अपराध गुडी करछि कोन हबो किछि हबो नाही जदि आपन यीशु को निकट आसीबे से क्रूस तळक आसीबे से क्रूसर सम्राट को निकट आसीबे जे आपन को पई क्रूसरे समस्त कार्य समाप्त करिसंती से आपन उद्धार करबा पई सामर्थ्य अटंती आ से कहउचंती आपन को स्वागत करिसंती आज प्रिय बंधु आपन ए शुभ शुक्रवार रे यीशु को निकट आसी पारिबे कारण से आपन को उद्धार निमंते सब कार्य समाप्त करिसंती आपन को किछि करबा पई पड़िबो नाही केवल यीशु को ग्रहण करबा पई पड़िबो यीशु को प्रभु बोली मानिबा पई पड़िबो आपन मध्य उद्धार प्राप्त होई जिवे अनंत जीवन अधिकारी होई जिवे स्वर्ग राज्य अधिकारी होई जिवे कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले मानव जाति को स्वर्गर अधिकारी करबा निमंते आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मनुष्यर उद्धार निमंते मनुष्यर मुक्ति निमंते जो चूड़ांत कार्य करिवार थिला ताहा से क्रूसरे समाप्त करिसंती हालेलुया प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो ए समस्त कार्य से क्रूसरे संपन्न करिसंती ताको नाम रो स्तुति हो ए समय रे आमाने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को क्रूसरे कहितिबा बाणी गुडी को ध्यान करूछु अब यीशु ख्रीष्ट को क्रूसरे ताको शेष बाणी ताको सप्तम बाणी कोन थिला ता आपण माने पाई परिबे लूक तारो 23 अध्याय तारो 44 पद
ଲୁକ 23:46 ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସପ୍ତମ ବାଣୀଟି ଥିଲା, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବାଣୀରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉ ଯେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି? ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:23 ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ଏ ସପ୍ତମ ବାଣୀରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜଗତର ଏଣେ ତେଣେ ଧାବମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଏହି ବାଣୀଟି କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ, ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା କଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ କି? ଆସୁ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏ କୃଷିୟ ଶକ୍ତ ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭରସା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାଣୀରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ, ଏ ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଜଗତରେ ଆମର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ପାରଦେଶର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ରହିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପରେ, ମନ୍ଦତାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅଟେ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାତାର ଯତ୍ନ ନେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରର ସେ କୃଷର ସମ୍ରାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ, ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହୁଁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପିତାମାତା ଦୁଃଖର ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଉପେକ୍ଷିତ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କର? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ଥିଲା, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୃଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାଣୀ ଥିଲା, ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପାପ କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲା ପରେ ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ସମାଧିକୁ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା କରାଗଲା, ଯେପରି ସେଠାରୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି।